Hello, dear students and participants of this certificate course on leadership development program. Myself, Dr. Adil Aziz Mumin from Department of Chemistry, JIT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. I will present a lecture on performance management, which is of course a part of online certificate course on leadership development program, which is very well run by Dr. Salma Abdul Sattar ma'am of Politics Department of JIT Senior College. So before start with this performance management, there are many topics which you are learning along with this in this leadership development program. It may be a achievement of your goal, it may be decision making, or it may be team building, or you can say there are many other topics. Okay, so one of them is this performance management. We will provide you a notes of this as well as few MCQs, and there are many reference books available online. You can refer to them along with our notes. Those will help you in this examination of this leadership development program. Okay, so let us start with this. First I want to mention one thing, that this course, this online certificate course will earn you a 4 credits, and those 4 credits will be helpful for you to receive the degree of BA, BSc of SPPU. And in this year, in this academic year to 2021 to 2022, the university has allowed to the colleges to conduct such a certificate courses at your college level, and university agreed to consider these credits to earn their undergraduate degrees of BA, BSc, BCom, BSc Computer Science, like that. So definitely this course will be helpful for your leadership development also, as well as it will earn you the required credits for the completion of BA and BSc degrees, of course. Okay, let us start with this. As this certificate course has the title leadership development. When after achieving your degrees, you are going to become a leader at some level. Okay, so what leadership qualities you need to have in yourself, you will learn by this course. And one of the topic under this leadership development program is performance management. Every organization or institution has its own vision, mission, and objectives. So to achieve those vision, mission and objectives, to the performance management is one of the tool, is one of the process which every organization has to follow. What is performance management? What exactly the performance management is? Performance management is the process of ensuring that a set of activities and outputs meets an organizational goal in an effective and efficient manner. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिसाइड किए जाते हैं, और जो आउटपुट्स अचीव होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करते हैं या नहीं इन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर.
ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ मकासद है उनको हम पहुंच रहे या नहीं है, जो कुछ भी आउटपुट्स है उनके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटपुट्स हमको मिल रहे हैं, तो ये बोलता है, ये होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर सपोज़ कि हम बहुत ही मेहनत से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमको बहुत सारे आउटपुट्स भी आ रहे हैं, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो एक टारगेट है, वो कुछ अलग है वो कुछ अलग है, तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। दोज आउटपुट्स आर नॉट इन अ डायरेक्शन ऑफ आवर विजन एंड मिशन। सो आवर आउटपुट्स, आवर एक्टिविटीज़ मस्ट मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे JIT आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज और ऐसे कई अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है, तो सबके विज़न एंड मिशन एक चार्ट उसके बनाए हुए होते हैं, होर्डिंग्स, बोर्ड्स, और वो कॉलेजेस में लगाए हुए होते हैं, है ना। और हम उन मिशन और विज़न्स को लेके अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और हम उनको मतलब उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं हर एक्टिविटी के ज़रिए। ओके, so that is a part of performance management. There is another definition of performance management written over here. It is a systematic process of improving the performance of the individuals and teams for the sake of an organization. देखो ये बहुत ही अच्छी एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे पेश की गई है कि इट इज़ सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से होना चाहिए हर काम, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस of the individuals and the teams. And very nice definition is there कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और साइड बाय साइड हर एक टीम जिसमें वो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, और ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंटली इट विल इम्प्रूव द performance of the organization and it will help to achieve the goal of an organization. अगर आप इंडिविजुअल्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते, टीम्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते, तो कॉन्सिक्वेंटली ये किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? फॉर द सेक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाएगा। ओके, अगर आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ के टीचर्स भी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे कॉलेज के, तो ये लोग भी हर साल या साल 2 साल में अलग अलग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, देन रिफ्रेशर कोर्सेस, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। ये किस लिए करते हैं? फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड विच विल कॉन्सिक्वेंटली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू अचीव द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देयर इज़ अनदर डेफिनेशन, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विथ कॉम्पिटेंस। इंडिविजुअल के अंदर एक कॉम्पिटेंस, अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ आनी चाहिए, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट्स, वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ शेयर्ड मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव है, तो उसकी तरफ काम करने के लिए उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट आनी चाहिए, तो इसके लिए हमको काम करना है। And it is overall called as performance management. Let us see what are the things included under this performance management. Performance management follows this cycle basically, जिसके अंदर ये 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग। हमको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करना है लीडर बनने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे पहला है प्लानिंग। आपको करना है प्लानिंग, एक अच्छा प्लान आपको तैयार करना है हर साल कि कैसे हम काम करेंगे। उसके बाद उसका मॉनिटरिंग, उसके बाद हमको उसके अंदर क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है, ट्रैक द प्रोसेस रेगुलरली एंड मिटिगेट ऑब्स्टैकल्स। उसमें कुछ परेशानियां तो नहीं आ रही है और उसको ट्रैक करना है, काम उसको बांटना है अलग अलग इंडिविजुअल्स को, ये सब मॉनिटरिंग में आता है। उसके बाद उसको रिव्यू करना है। थर्ड स्टेप इज़ रिव्यूइंग। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल की थर्ड स्टेप रिव्यूइंग। तो रिव्यूइंग में क्या करना है, हमको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट किस तरह से? हाउ इवैल्यूएशन इज डन, हाउ मच ऑफ द गोल इज अचीव्ड, हाउ मच द टास्क इज कंप्लीटेड,
जैसे एक टास्क हमने एक इंडिविजुअल को दिए, तो इवैल्यूएशन का मतलब, रिव्यूइंग का मतलब ये होता है कि जैसे वो 60% कंप्लीट हो गई, 40% हो गई, 80% हो गई, अब कितनी बाकी है, 20% बाकी है, 40% बाकी है। तो वो जो 20-40% बाकी है उसमें कुछ आने वाले कुछ मतलब कुछ मसाइल हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उसको हल करना है यहाँ पे हमको, उसको बोलते हैं रिव्यूइंग प्रोसेस। और चौथी और आखिरी स्टेप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल की, वो है रिवार्डिंग। कि आपको कुछ अच्छे काम को रिकग्नाइज करना है इंडिविजुअल्स के, टीम्स के, और फिर उनको रिवार्ड भी देना है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको एक एप्रिसिएशन देना है, रिवार्ड देना है, कुछ अवार्ड देना है, कुछ इंसेंटिव देना है। तो वो सब यहाँ पे आता है। ओके, एंड दिस ऑल कंप्लीट्स द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसके अंदर कुछ और है। सिंपली इट इज़ जस्ट मीन्ड फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या कर सकते हैं हम, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे, जो आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस सलमा मैडम ने आपको दिए होंगे, तो उसके सिलेबस में भी ये प्रिस्क्राइब्ड है ये चीज़ें। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो देखो ये कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है चैप्टर में। कंडक्टिंग एनुअल अप्राइजल, एनुअल अप्राइजल लेना है आपको। कलेक्शन ऑफ फीडबैक्स कलेक्ट करना है। एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज़, आपको कुछ एम्प्लॉयज़ के एम्पावरमेंट के लिए नए नए स्ट्रेटजीज़ लाना है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो एक्सपर्ट्स ने बताए तो हमको उसको फॉलो करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स, यू कैन यूज़ डिफरेंट टूल्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, वो हम देखेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट अंडर दिस चैप्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अपने को जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी टीम में काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। सो वी विल सी देम वन बाय वन। सबसे पहला है कंडक्टिंग एनुअल अप्राइजल्स। क्या होता है ये अप्राइजल? व्हाट इज मीन बाय अप्राइजल? अप्राइजल, यू नो, इट इज़ द असेसमेंट, वन ऑफ द काइंड ऑफ असेसमेंट। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स इसके अंदर में आते हैं। तो हर साल आपको क्या करना है? एनुअल अप्राइजल करना है, असेसमेंट करना है। इंडिविजुअल्स ने क्या काम किया, टीम ने क्या काम किया, इसको असेस करना है साल में एक बार। ओके, और वो कैसे करना है? तो वो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बेहतरीन डायग्राम पिक्चर यहाँ पे रखा गया है, जिसके अंदर बता रहा है वो कि पुअर है, डेवलपिंग है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट काम करने का हम यहाँ पे उसका स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी ये साल में कैसी रही, उसका कम्युनिकेशन कैसा रहा, उसको दी गई टास्क कितने % कंप्लीट हुई, उसको दी गई टास्क में मतलब उसका अपना कैसा परफॉर्मेंस है, उसको दिया गया ओबीडियंस कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम मतलब उसको, जो टीम लीडर होता है या मैनेजर होता है, तो उसके दिए गए हुक्मों को वो मानता है या नहीं मानता, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है तो उसको लेके वो कितना फ़िक्रमंद होता है। तो ये सब चीज़ें उसके हम नापते हैं साल के आखिर में, और उसको बोलते हैं एनुअल अप्राइजल। ओके, इसके अंदर अलग अलग उसको फिर मार्क्स दिए जाते हैं, और फिर उसके साथ मीटिंग करके उसके वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ, इनको डिस्कस किया जाता। उसकी जो अच्छी बातें हैं तो उसको मतलब सराहा जाता है, एप्रिसिएशन दिया जाता, रिवार्ड दिया जाता, और जो वीक पॉइंट्स हैं तो उस पर डिस्कशन लिया जाता है कि मतलब इसको कैसे इम्प्रूव किए जाए। इसको बोलते हैं एनुअल अप्राइजल। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं कि
एनुअल अप्राइजल के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सो इट असिस्ट टू एनहांस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सबसे पहला एडवांटेज उसका है कि ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एनहांस करता है, अच्छा करता है। ओके, कि अगर उसके मतलब वीक पॉइंट्स उसके सामने रखे जाए और उसके अच्छी चीज़ों की तारीफ़ की जाए तो ऑफ कोर्स उसका काम करने में और मन लगेगा। जो वीक पॉइंट्स रहेंगे वो उसको इम्प्रूव करेगा और अगले साल उसमें भी सुधार लाएगा। और इसके अलावा जो करंट परफॉर्मेंस है उसके बदले में उसकी तारीफ़ हो रही है, उसको सराहा जा रहा है, तो वो उससे भी खुश होगा और उसका परफॉर्मेंस बेसिकली इम्प्रूव होगा। ओके, सेकंड बेनिफिट दिया है कि बी इंटीग्रेटेड विथ स्ट्रैटेजिक विज़न। अगर सपोज़ कोई एम्प्लॉय, कोई इंडिविजुअल, कोई टीम अगर विज़न और मिशन को लेके कहीं डाइवर्ट हो रही है, अगर कहीं दूसरी तरफ जा रही है, तो एनुअल अप्राइजल के वक्त में वो भी डिस्कस किया जाएगा और उसको फिर से ट्रैक पर लाया जाएगा। ये का दूसरा बेनिफिट है। देन हाइक इन सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन। अगर कोई चीज़ मतलब कोई इंडिविजुअल अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उनको सैलरी हाइक दे सकते हैं हम, उनको अलग अलग रिवार्ड दे सकते हैं। और अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे कॉम्पेंसेट करना है वो हम यहाँ पे एनुअल अप्राइजल में डिस्कशन कर सकते हैं। दिस इज़ थर्ड बेनिफिट। एक और बेनिफिट दिया है यहाँ पे, प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र्स। यहाँ पे हम एज़ पर दी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल उनके प्रमोशंस डिसाइड कर सकते हैं, है ना। इफ़ यू डू द प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, सो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय विल गिव यू देयर 100% और मोर देन 100% आई विल से। कि आप अगर प्रमोशन उनके परफॉर्मेंस पे बेस्ड रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो है तो वो बिल्कुल मेहनत से, लगन से पूरे मोर देन 100% आउटपुट के साथ काम करेंगे और फिर वो अपने अपने रिवार्ड्स लेंगे साल के आखिर में। ओके, और इसी के साथ एक ट्रांसफ़र, एक फिनोमेनन होता है ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के, जिस कंपनी के एक से ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हैं साल में। आपने देखे होंगे टीचर्स वगैरह के भी ट्रांसफ़र्स होते हैं, और अगर एक से ज़्यादा कॉलेज है किसी मैनेजमेंट के तो वो भी टीचर्स का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ओके, और एक लास्ट बेनिफिट यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स एनुअल अप्राइजल के हो सकते हैं और आपको वो बुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ख्यालात अपने अपने ऑथर्स के देखने मिलेंगे इफ़ यू रेफ़र टू अदर बुक्स। ओके, द टूल ऑफ इंस्पिरेशन, एनुअल अप्राइजल इज़ द टूल ऑफ इंस्पिरेशन। ये मतलब हम यहाँ पे एम्प्लॉय को इंस्पायर भी करते हैं कि कैसे मतलब उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है और कहाँ पे वो वीक है तो उसमें क्या करना चाहिए। दोज इंस्पिरेशंस कैन बी गिवन हियर टू द एम्प्लॉय। ओके, then second point in this chapter is feedbacks, collection of feedbacks, giving feedbacks. ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है फीडबैक्स। मुझे लगता है कि आप लोगों से भी हम फीडबैक लेते हैं। स्टूडेंट्स also give their feedback online, which is the link for which is available on the our college website jetacademia.com। और सीनियर कॉलेज में अगर उस पर जाएंगे आप तो स्टूडेंट के आइकॉन के नीचे स्टूडेंट्स फीडबैक है, SSS है। SSS मीन्स स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। उसकी लिंक पर आप जाकर आप हर पिछले साल का फीडबैक दे सकते हैं। जैसे अगर 21-22 में आप पढ़ रहे तो 22-23 में आप लॉगिन करो, कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पे जाके SSS के लिंक पर आप क्लिक करो और आपको वो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। आप आपके रोल नंबर और उसमें डाटा भरिएगा और फिर हम अपना स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, उसमें जो भी क्वेश्चन आयर एक रखी गई है उसके आंसर करो और आपका वो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे सबमिट होता है। और उससे हमको बहुत सारे आपकी तरफ से मतलब फीडबैक्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड आंसर्स मिलते हैं। फिर आपके पर्सनल
सजेशंस मिलते हैं, जिससे फिर हम मतलब कॉलेज में उसको इम्प्लीमेंट करके और हमारे कॉलेज को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक फीडबैक्स भी होते हैं अलग अलग, फीडबैक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़, फीडबैक्स फ्रॉम पेरेंट्स, फीडबैक्स फ्रॉम टीचर्स एंड फीडबैक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। तो ये फीडबैक भी हम ऑनलाइन लेते हैं, वेबसाइट पर इसके लिंक्स अवेलेबल है। तो ये सब भी हमारे एक इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है ये, गिविंग फीडबैक, कलेक्शन ऑफ फीडबैक्स। देखो इसके अंदर अलग अलग पहलू होते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, ये पिक्चर में बताया गया है कि इससे हमको आइडियाज़ मिलते हैं, रिस्पांस मिलते हैं, ओपिनियंस मिलते हैं। इसके अंदर एक सर्वे हो जाता है हमारा, जब भी हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं हमारे काम का सर्वे हो जाता है, कमेंट्स मिलते हैं, ओके, अलग अलग। उसके बाद में रेटिंग मिलती है कि हमारे कौन सी फील्ड में हम मतलब क्या लेवल को है, रेटिंग 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, या वर्स्ट है, और यू कैन से एक्सेलेंट है, गुड है, बेस्ट है। इस तरह के हम रेटिंग्स लेते हैं जो कोई भी फीडबैक भरता है हमारे उनसे। उसके बाद रिजल्ट्स उसके हम निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर उससे हम एक्शन टेकन रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये सब फीडबैक प्रोसेस के पार्ट में आता है, ओके। एडवाइसेस लेते हैं हम हमारे पीयर मेंबर्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, स्टेक होल्डर्स के, ये सब होता है। कॉलेज लेवल पे भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज वेबसाइट पे ये सब अवेलेबल है, ओके। सी what is exactly feedback is? In systems engineering, feedback transmits information on performance from one part of a system to an earlier part of the system in order to generate corrective action or to initiate new action. This all definition you can read this carefully कि हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक एक इंफॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस किससे ले रहे हैं, फ्रॉम अपर पार्ट टू एन अर्लियर पार्ट। मतलब हम जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम उनसे प्रोडक्ट का फीडबैक लेंगे, ओके, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू एन अर्लियर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे हम फीडबैक लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा था, हमारी सर्विसेज कैसी है, ओके। दिस इज़ कॉल्ड एज फीडबैक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू एन अर्लियर पार्ट। अर्लियर पार्ट जहाँ से वो चीज़ ले रहा है, जहाँ से उसको सर्विसेज मिल रही है, तो उसके बारे में वो बताएगा, दैट इज़ एन अर्लियर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। तो ये होता है फीडबैक। लेट अस सी what more in feedback. There is 360-degree feedback which is recommended by many experts for the sake of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए एक फीडबैक का एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है 360 डिग्री फीडबैक, ओके। और वार्ड नामी एक ऑथर है जिसने अपनी बुक में 360 डिग्री की क्या डेफिनेशन की है वो मैंने यहाँ पे कॉपी की है। द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस डाटा। परफॉर्मेंस डाटा के बारे में अपने को फीडबैक लेना है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है ऑन एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन देयर परफॉर्मेंस। अपने को एक ही किसी सोर्स से फीडबैक कलेक्ट करना और उसी को मान लेना, तो ये इनकम्प्लीट फीडबैक है। हमको लेना है 360 डिग्री फीडबैक, और उसके अंदर ये बताया गया है कि फ्रॉम नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। जैसे एक कॉलेज में स्टेक होल्डर्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं जैसे मैनेजमेंट है जो कॉलेज चला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है कॉलेज के जो टीचर्स और प्रिंसिपल है, उसके बाद में स्टूडेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, और जो एम्प्लॉयर्स है जो हमारे स्टूडेंट्स को जॉब देने वाले, ये सारे लोग हमारे कॉलेज के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स है। तो सभी से फीडबैक लेना, और इसको कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक, ओके। वार्ड की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने नकल की है, यू कैन रेफर टू अदर बुक्स फॉर मोर डेफिनेशंस। क्या होगा इससे 360 डिग्री फीडबैक से? देखो, अगर सपोज़ हम सिर्फ स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं, स्टूडेंट से फीडबैक ले लिए, उनकी जो सोच होती है तो वो उनके लेवल की होती है। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सोचेंगे कि मुझे सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे ऐसे बुक्स होने चाहिए लाइब्रेरी में, मुझे ऐसे टीचर्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना, वो उसकी लेवल से फीडबैक देगा। बट दैट इज़ नॉट दी होल, दैट विल नॉट कवर द होल एरिया
ऑफ दैट कॉलेज। वो कॉलेज के हर एरिया को कवर नहीं करेगा, हर एक प्रॉपर्टी को वो कवर नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है, 360 डिग्री फीडबैक लेना है अलग अलग लोगों से, अलग अलग लेवल के लोगों से। जैसे एम्प्लॉयर से फीडबैक लेंगे तो वो क्या बताएंगे हमको कि मुझे कैसे स्टूडेंट चाहिए। आने वाले स्टूडेंट्स में बीएससी, बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आने वाले स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, आपके सिलेबस में क्या कमी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ की कमी है जो आपके स्टूडेंट्स में मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो वो बताएंगा हमको। और फिर उससे हम हमारे कॉलेज में और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और फिर डेफिनेटली इट विल हेल्प इन दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ आवर कॉलेज। ओके, पेरेंट्स से क्या फीडबैक मिलेंगे, पेरेंट्स बताएंगे कि मेरे स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ होती है, क्या क्या कमियाँ हैं, या और क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, ये पेरेंट्स बताएंगे। हम लोग टीचर से फीडबैक लेंगे कि यूनिवर्सिटी ने जो करिकुलम बनाया, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया, तो उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, प्रैक्टिकल्स क्या रखने चाहिए साइंस के लिए, और सिलेबस में क्या क्या मतलब और चेंजेस आ सकते हैं, ये सब टीचर्स बताएंगे। ये स्टूडेंट नहीं बता सकता, या ये कोई और मैनेजमेंट और हमारे पेरेंट्स नहीं बता सकते। तो अलग अलग लोगों से अगर हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा डाटा मिलेगा और वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। दैट इज़ कॉल्ड एज 360 डिग्री फीडबैक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अगला हिस्सा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़। यहाँ पे सिंपल, द नेम इट सेल्फ इज़ इंडिकेटिंग इट्स मीनिंग, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का, इनको एम्पावर्ड करना है हमको। उनको मतलब उनका हौसला पस्त नहीं करना है, उनकी हौसला अफजाई करते रहना है हर मोड़ पे और हर साल। तो वो किस तरह किया जा सकता है, सी व्हाट इट मीन एग्जैक्टली। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ मीन्स cheering them with different types of boosters. It may be kind words, चाहे आप अल्फाज से ही उनकी तारीफ़ कर लो, that is one of the empowerment. Appreciation, हर उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करो, है ना। हर एक अच्छे काम, जब भी कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है कोई एम्प्लॉय, तो जब भी कुछ अचीवमेंट हासिल करता है, कोई बड़ी डिग्री, जैसे कॉलेजेस के कोई टीचर पीएचडी अवार्ड होके आते हैं या कोई नेट सेट क्वालिफाई करते हैं, तो हम उनको मतलब सराहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बुके वगैरह, शॉल वगैरह पेश करते हैं। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ अप्रिसिएशन। ओके, कुछ अवार्ड दे सकते हैं आप, मतलब कुछ एक अच्छी अचीवमेंट, कोई प्रोफेसर कोई बड़ा रिसर्च करता है तो उसको ट्रॉफीज़ वगैरह पेश कर सकते हैं हम, दैट इज़ एन अवार्ड। ओके, इंसेंटिव्स दे सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है और उसने कुछ बड़ी अचीवमेंट किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फ़ायदा पहुंचा, तो उस वक्त में एक फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल बेनिफिट वो एम्प्लॉय को देना, इसको कहते हैं इंसेंटिव। जैसे अदर देन इट्स हिज सैलरी, उसकी सैलरी जो कुछ भी है, तो उसके अलावा उसको कुछ और रकम देना, इनामी रकम, उसको बोलते हैं इंसेंटिव। और मे बी एनी अदर रिवार्ड फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय। अगर वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है तो उसको किसी भी और तरह का रिवार्ड देना, ये सभी आता है एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में। ओके, इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दे विल बी चीयर्ड अप, वो उनका चीयर अप होगा। इससे जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे और उनके अंदर एक और एनर्जी भर जाएंगी, जिससे वो आगे और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस देंगे और ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ एम्पावरिंग एम्प्लॉय। See, there is one conclusion given over here of the empowerment of employees. People work positively at improving their performance and developing their skills if they feel empowered by the process. अगर सपोज किसी एम्प्लॉय को उसका रिवार्ड मिल रहा है, कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ अवार्ड मिल रहा है, कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है काम करने के बाद, तो डेफिनेटली ये उसके काम करने को पॉजिटिव बनाता है।
अगर सपोज फॉर एग्जांपल देखो इसके निगेटिव में देखो, ऑन दी सी अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर सपोज कोई एम्प्लॉय उसका 120% दे रहा है उसकी एबिलिटी का, उसके काम कर परफॉर्मेंस का 120% दे रहा है, 120% मतलब मोर देन उसकी एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, और उसको कोई रिवार्ड नहीं है, उसका कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई अवार्ड नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, तो वो क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, ऑफ कोर्स उसका जो विज़न है तो वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। ही विल वर्क निगेटिवली कि यहाँ पे काम करने से कुछ नहीं मिलता, कितनी भी मेहनत कर लो उसका कोई आउटपुट नहीं, कोई सिला नहीं है। ओके, ये होगा निगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द पीपल, द employees, the individual work positively at improving their performance and developing their skills if they feel empowered by the process। अगर हमारे सिस्टम की प्रोसेस से, अगर हमारे मैनेजर से या हमारे जो भी मैनेजमेंट है उनसे अगर एम्पावरमेंट मिल रही है, उसको सराहा जा रहा है एम्प्लॉय की किसी काम को, तो वो आगे पॉजिटिवली काम करता है। He looks positively ahead for the next year। ओके, अगला टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। देखो यहाँ पे चैप्टर के शुरू में भी मैंने बताया था आपको कि कुछ टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ओवरऑल जितने भी ये 6 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस, ये भी एक टूल्स की तरह ही है, बट देयर आर आईटी टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी है कि जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स और टीम्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने में जिससे मदद ले सकते हैं हम लोग। तो दीज टूल्स आर कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे द बेस्ट 7 फ्री एंड ओपन सोर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का एक जिक्र है शॉर्ट में बिल्कुल। इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पीड अप वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो वो मतलब मेरे काम पे मेरा ध्यान है और वो काम में अगर कुछ गलती हो रही है तो वो मॉनिटर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है, कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रहा है, तो ये मॉनिटर करने के लिए क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो मुझे इंडिकेट करेंगे, वो मुझे मैसेज वहाँ पे भेजेंगे, मुझे अलार्म करेंगे कि आप कहीं ना कहीं आप गलत हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप गोल से हट रहे हो, कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प मी इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। गोल्स को लेकर कि आप कुछ काम कर रहे हो तो ये गोल्स की तरफ नहीं ले जा रहा है, आपको आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो वहाँ पे मुझे कुछ सॉफ्टवेयर है वो मुझे इंडिकेट करेंगे, वो मुझे सिग्नल देंगे, है ना, कि आप गोल से हट रहे हो। तो इस तरह के स्कोप को लेकर, इम्प्रूवमेंट को लेकर, कि सपोज़ कुछ काम मैं कर रहा हूँ और उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे मतलब कंप्यूटर पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो कंप्यूटर मुझे सिग्नल देगा कि ये आप सपोज़ निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रहे हो, इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे। तो इस तरह से हम अलग अलग टूल्स, टाइम को लेकर, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सडनली हमको सिग्नल आएगा कंप्यूटर से, तो ये ऐसे टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो सकता है। दीज आर कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। प्रायोरिटीज़, स्कोर कार्ड, स्कोर से भी कभी कभी हम नंबर से अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, या हम वीकली परफॉर्म कर रहे हैं या स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब हम इससे भी सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। दीज सॉफ्टवेयर्स विल कॉल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। जैसे यहाँ पे टॉप 10 एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इनके नाम है कंपनियों के लेफ्ट हैंड साइड में। ये कंपनी ने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम भी है ऐप्स के, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, एरर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन, नेटवर्क डिवाइसेस, एप्लीकेशन लॉग एक्टिविटीज़, उसके बाद रिलीज़ मैनेजमेंट, देन परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, इस तरह के अलग अलग
ऐप्स अवेलेबल है उसको हम परचेस करें, या उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो परचेस करेंगी उनके गोल के हिसाब से, और वो हमको अवेलेबल कराएंगी और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, and definitely that will improve our performance. One of the example given here of performance management tool, a graphic rating scale. ग्राफिक, एक ग्राफ की फॉर्म में रेटिंग जो हमको देता है, तो ऐसा एक टूल है, ऐसा एक स्केल है, तो वो एक टूल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब वो हमको क्या करता है, कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी बिहेवियर के बारे में वो रेटिंग देता है हमको 1 to 10, 1 से 10 तक उसको मार्क्स रहते हैं, या पुअर टू एक्सेलेंट जैसे हम फीडबैक्स देते हैं ऑनलाइन में बताया आपको। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स, जो हमको मतलब रेटिंग में बताते हैं कि आपका परफॉर्मेंस समझो 1 से 10 तक, तो 10 चल रहा है मीन्स वेरी नाइसली गोइंग ऑन, 8 है, 6 है, 5 है, वीक है, ओके, स्ट्रॉन्ग है, एक्सेलेंट है, पुअर है, इस तरह के ये हमको बताता है। तो इन सब को कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स। उसके बाद 5 नंबर पे आता है, टोटल 6 पॉइंट्स हमको कवर करने हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जिसमें से 5वां है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगेन ये एक जो टूल सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करते हैं अपन, उसके ज़रिए उसी का मतलब इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हम किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कैसे कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं। तो उसको अगर अपन मेज़र करने के लिए क्वांटिफिएबल, किसी क्वांटिफिएबल मेज़रेबल अगर पैरामीटर में अगर उसको लाते हैं तो उसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसको मेज़र करने मतलब उसको नंबर में एक्सप्रेस करें हम, तो उसको हम बोलेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो मेज़रेबल वैल्यू होती है किसी भी काम करने की। तो मेज़रेबल क्वांटिफिएबल अगर उसमें लाते उसको अपन, तो हम उसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहेंगे। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ए स्पेसिफिक, ए मेज़रेबल, ए रियलिस्टिक एंड एन अटेनेबल एंड ए टाइम बाउंड टास्क that is set to improve the performance of an individual or an organization। किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक टाइम बाउंड और अटेनेबल, दैट मस्ट बी अटेनेबल, इम्पॉसिबल टास्क नहीं रखना है अपने को किसी के सामने, और टाइम बाउंड रखना है कि इतने वक्त में अपने को एक काम करना है, और वो अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मेज़रेबल होना चाहिए कि उसको हम गिन सके कि अपने को 100 में से 80% हुआ, 90% हुआ, 75% अचीव हुआ। ऐसा एक काम, ऐसा एक गोल डिसाइड करना, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, हम एग्जांपल के ज़रिए इसको देखेंगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या होता है। सी एग्जांपल्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे रिवेन्यू पर रीजन पर मंथ। जैसे किसी कंट्री के लिए जो रिवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन में पर मंथ कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके, इट इज़ रियलिस्टिक, इट इज़ अटेनेबल, है ना। इम्पॉसिबल काम तो नहीं है ना ये, कि किसी एक एरिया का रिवेन्यू कैलकुलेट करना किसी गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये रिवेन्यू पर रीजन पर मंथ, एक मंथ में वहाँ से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, फिर अगले मंथ में कितना हो रहा है, फिर उसके अगले मंथ में कितना हो रहा है। इससे क्या होगा, वहाँ की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हमको फिर बहुत सारे मतलब हम कदम उठा सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है मंथ बाय मंथ। ये हम उससे एनालाइज करके और फिर उसके बारे में डिसीजंस ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। तो ये हमको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए काम आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे और एक एग्जांपल, न्यू कस्टमर्स पर क्वार्टर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कुछ माल, मटेरियल, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको पर क्वार्टर कितने न्यू कस्टमर्स ऐड हुए। जैसे ओल्ड जो कस्टमर्स है उनको तो हमको पकड़ के चलना ही है, साथ लेकर चलना ही है। इसके अलावा क्वार्टर 3 मंथ्स में और कितने नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, हर आने वाले 3 मंथ्स में कितने नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं। तो न्यू कस्टमर्स पर क्वार्टर, दिस इज़ अटेनेबल, अचीवेबल,
मेजरेबल क्वांटिटी क्या है ये, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, किसी क्वांटिटी में हम उसको गिन रहे हैं, है ना, क्वांटिफिएबल कर रहे हैं उसको, क्वांटिफिएबल पैरामीटर है। सो दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI से इसको बोलते हैं। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल to you when you will become a leader somewhere. Okay, key performance indicator, okay, measurable किसी पैरामीटर में कोई टास्क रखना, कोई गोल सेट करना और फिर उसको मतलब उसके मेजरमेंट्स आने के बाद उसको इम्प्रूव करने के उस पर एक्शन लेना। सो दीज आर दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, 2 ऑफ देम आई हैव प्रेजेंटेड हियर, रिवेन्यू पर रीजन पर मंथ, न्यू कस्टमर्स पर क्वार्टर, है ना, ये मेजरेबल पैरामीटर्स है। देखो यहाँ पे और कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के और एस्पेक्ट्स हैं कि जैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, इसके अंदर रिसर्च पॉसिबल है। ओके, ऑप्टिमाइजेशन करना ये भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उसके बाद रिसर्च करना ये भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ यहाँ पे मतलब KPI को लेकर हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इससे सक्सेस मेज़र कर सकते हैं कि जैसे ये मेज़रेबल क्वांटिटी है तो हम मेज़र कर सकते हैं कि मतलब अगर 80% अगर हम किसी गोल को अचीव कर रहे हैं तो 80% सक्सेस हमको मिल रहा है। उसके बाद में एनालिसिस इससे हासिल होता है कि मतलब कितने कस्टमर हर 3 महीने को बढ़ रहे हैं, तो ये एक एनालिसिस यहाँ पे करते हैं हम। टारगेट कितना अचीव हो रहा है वो भी KPI से हम पता कर सकते हैं। कुछ मेजरेबल पैरामीटर्स रख के हम पता कर सकते हैं कि हमारा टारगेट हमको अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, कितना हो रहा है तो कितना हो रहा है और फिर क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। ओके, सो KPI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके अंडर में मतलब कैसे प्रोसेसेस है देखो यहाँ पे दिए गए। डिसाइड व्हाट टू मेज़र, सबसे पहले हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि क्या मेज़र करना है। देन कलेक्ट द डाटा, फिर डाटा कलेक्ट करो। ओके, एनालाइज द डाटा, उसको एनालाइज करो। रिपोर्ट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट बनाओ एंड उसकी रिपोर्टिंग करो। और फिर टेक एक्शन लो कि अगर मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने एक डिसाइड किया, कोई भी एक KPI लेके उसको स्टडी किया, डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, रिपोर्ट द रिजल्ट उसका बनाया और बनाने के बाद वो बहुत ही वीक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टेक एक्शन, है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्शंस लिए जाए। ओके, तो ये KPI के एडवांटेजेस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देन लास्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंडर में पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। अपने को यहाँ पे क्या करना है, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पर्सनली हर एक इंडिविजुअल को डेवलप करना है, उसको डेवलप करना है ताकि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। ओके, और फिर वो कॉन्सिक्वेंटली मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन यू कैन फॉलो हियर। व्हाट पीपल डू, व्हाट दे हैव अचीव्ड, व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स दे हैव, what knowledge and skills they need are the basis of personal development plans. पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स में अपने को पहचानना है कि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, क्या उनकी अचीवमेंट है, क्या नॉलेज और स्किल्स उनके पास है और क्या होना चाहिए, कौन से नॉलेज और कौन से स्किल्स उनके अंदर होना चाहिए हमारे गोल को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन और के विज़न और मिशन पर काम करने के लिए उस इंडिविजुअल, उस एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आता है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर। सी हियर, एक्शन प्लान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के अंडर में। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान ये जो होता है ना, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट होती है हर एक इंडिविजुअल की, हर एक एम्प्लॉय की पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पे हमको करनी है। तो इसके अंदर ख़ास तौर से इंडिविजुअल को गाइड किया जाता, उस एम्प्लॉय, उस काम करने वाले को गाइड किया जाता कि वो अपनी खुद की डेवलपमेंट कैसे करे, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करे, तो उसको गाइड किया जाता। और वो कैसे करना चाहिए वो इस पॉइंट के यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है
कि एक्शन प्लान उसको प्रिपेयर करना होता है, खुद का एक्शन प्लान, एक इंडिविजुअल का एक्शन प्लान उसको प्रिपेयर करना होता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। हमेशा कोई भी काम करने से पहले मुझे क्या काम करना है और उसको कैसे करना है, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्शन प्लान। सो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पर्सनल डेवलपमेंट प्लान की एक्शन प्लान से होती है। एन एक्शन प्लान इंक्लूड्स व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन। सो लेट अस सी व्हाट मोर थिंग्स पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स इंक्लूड। और क्या क्या चीज़ें इसमें? लर्निंग नीड्स उसको पहचानना है कि क्या क्या सीखना है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है उसके काम के, लर्निंग एक्टिविटीज़ टू मीट द नीड्स, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसको करना है कि फिर वो मतलब उसके गोल को अचीव करने में जो मदद करेंगी, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ उसको करना है ये पहचानना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, व्हाट इंडिविजुअल्स विल डू एंड व्हाट सपोर्ट दे विल रिक्वायर फ्रॉम देयर मैनेजर। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को मतलब क्या क्या चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, ये भी मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट और उसके जो भी टीम लीडर्स हैं उनको पहचानना होता है और उनको भी हेल्प करनी होती है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद उसको टाइम बाउंड रखना होता है कि कब हमको स्टार्ट करना है और कब तक कंप्लीट करना है। ये सब चीज़ें जब इंडिविजुअल अपने आप का एक एक्शन प्लान बनाएगा और उसके अंदर सब मेंशन करेगा और उसके बाद वो काम शुरू करेगा। ओके, सो दैट इज़ ए प्लान, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। और जब उस प्लान के मुताबिक वो काम करेगा तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा और उसको पहले से ज़्यादा आउटपुट्स मिलेंगे, पहले से ज़्यादा उसको कामयाबी मिलेंगी। जैसे यहाँ पे एक दो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में ये बनाए जाते हैं कि सबसे पहला कॉलम यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत ढेर एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन और अलग अलग किताबों के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं और अपना फिर खुद का परफॉर्मेंस पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। ये हर इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो एक अपना टारगेट डिसाइड करे, फिर उसको कैसे अचीव करना है वो लिखे, उसके लिए क्या क्या सपोर्ट और रिसोर्सेस लगेंगे देखो यहाँ पे वो उसमें लिखे और उसकी टारगेट डेट रखे कि मुझे कब तक ये सब करना है, कब तक ये टारगेट अचीव करना है। और इसमें बहुत सारे कॉलम आप बढ़ा सकते कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ पॉसिबल है और अगर ये डिफ़िकल्टी आई तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूँगा, कैसे हल करूँगा। ये सब आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के हिस्से हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और दूंगा, देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, पहला कॉलम है टारगेट, इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स विथ ऑन कैमरा फ्लैश गन्स यूजिंग देम ऑन एंड ऑफ द कैमरा फॉर वेरियस पर्पज़। ये एक मतलब एक आईटी या मोबाइल वाले ने एक अपना टारगेट रखा है कि मुझे कैसे टेक्निकल स्किल कैमरे के मतलब मुझे डेवलप करने, तो वो यहाँ पे फिर लिख रहा है कि मैं कैसे करूँगा ये सब। सेटअप द सिचुएशन टू प्रैक्टिस यूजिंग फ्लैश गन एंड लुक एट ऑलवेज इट कुड इम्प्रूव माई वर्क। फिर मुझे क्या क्या सपोर्ट लगेंगे, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, तो वो बोल रहा है कि इक्विपमेंट्स लगेंगे, गन्स लगेंगे, फ्लैश गन्स, इंटरनेट लगेंगे, ऑनलाइन गाइड्स एंड इंस्ट्रक्शन ये सब लगेंगे और मुझे कब तक अचीव करना है वो यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस तरह एक और यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान है, देखो इसमें ज़्यादा कॉलम्स है कि यहाँ पे सबसे पहला टू बी डेवलप, क्या डेवलप करना है, पब्लिक स्पीकिंग, फिज़िकल वाइटलिटी, लैंग्वेज, जॉब पोजीशन, एक्सपेक्टेड गोल। सेकंड कॉलम वो लिख रहा है, मतलब आपको अपना हिसाब से बनाना है कि क्या क्या कौन कौन से कॉलम आपको रखने हैं और फिर उसमें अपने अपने प्लान वगैरह लिखना है। जैसे यहाँ एक्सपेक्टेड गोल क्या क्या लिख रहा है, ये ओवरकम नर्वसनेस, कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग ये डेवलप करना है। उसमें एक्सपेक्टेड गोल क्या है कि नर्वस नहीं होना चाहिए, जब भी मैं पब्लिक के सामने बोलूँ, कहीं खड़ा रह के जब मैं बोलूँ तो मेरे अंदर एक नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए, मेरे अंदर एक डेयरिंग होनी चाहिए, मैं अपसेट नहीं रहना चाहिए, मेरे अंदर एक खुश मिजाजी रहना चाहिए। तो ये उसका टारगेट है। तो व्हाट एक्शन आई विल मेक, मैं क्या करूँगा उसके लिए। ट्रेन एट स्कूल, मैं स्कूल में ट्रेनिंग लूँगा। प्रैक्टिस विथ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मैं रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बीच में बोलने की कोशिश करूँगा और मेरी प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, मतलब ऑन व्हाट बेसिस आई विल कम टू नो दैट आई एम गेटिंग सक्सेस और नॉट। क्राइटेरिया जिसको कहा जाता है सक्सेस क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो अपना एक सक्सेस क्राइटेरिया रखो
कि किस क्राइटेरिया की बेस पे आप समझोगे, यू विल कम टू नो वेदर यू आर गेटिंग सक्सेस और नॉट। तो वो सक्सेस क्राइटेरिया आपको प्री डिसाइडेड रखना है, पहले से मालूम रखना है। तो देखो वहाँ पे सक्सेस क्राइटेरिया इसने क्या रखा है, पब्लिक स्पीकिंग उसको डेवलप करना है और उसको नर्वसनेस को ओवरकम करना है। तो क्या क्राइटेरिया से वो समझेगा कि मैं डेवलप हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, या मैं सिर्फ दिन बर्बाद हो रहे हैं मेरे। तो वहाँ पे क्राइटेरिया वो रख रहा है कि एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ क्राउड। मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं कितनी भी क्राउड के सामने मीन्स फ्रैंकली बोल सकूँ, डेयरिंग से बोल सकूँ, एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंट से बोल सकूँ। ओके, ये उसका क्राइटेरिया। जब वो बोलना सीख जाएगा तो कॉन्फिडेंटली पब्लिक के सामने, क्राउड के अंदर, तो वो समझ जाएगा कि मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, एक्सपेक्टेड गोल मेरा अचीव हो रहा है, हो गया है। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी, मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो बगैर इसके नहीं होने चाहिए, एप्लीकेशन कोई बगैर आउटपुट के नहीं होना चाहिए। अगर बीए आप कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग अचीव, यू आर कंप्लीटिंग योर बीए डिग्री, क्यों कर रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए उसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट व्हाई यू आर कंप्लीटिंग, व्हाई यू आर रिसीविंग दैट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, व्हाई यू आर व्हाई यू आर स्पेंडिंग योर 3 years फॉर दैट डिग्री। उसका एप्लीकेशन होना चाहिए कुछ तो भी। अगर मैं कुछ रिसर्च करूँ और उसका कुछ आउटपुट नहीं है, कुछ एप्लीकेशन नहीं है, तो वो उठा के फेंक देंगे सब लोग, अरे क्यों किया इतना वक्त बर्बाद, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट, टाइम एंड मनी। ओके, तो ये सब नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग एंड यू नो दिस ओवरकम नर्वसनेस, इसका आउटपुट क्या है, तो वो पहले से लिख रहा है यहाँ पे। जो भी पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना रहा है एम्प्लॉय, तो पहले से लिख रहा है कि फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसका जब मैं अच्छा बोलने वाला बन जाऊंगा, कॉन्फिडेंट बोलने वाला बन जाऊंगा, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, कि मुझे ये फिर आगे मेरा प्रेजेंटेशन के लिए मुझे काम आएगा। कहीं भी मैं पब्लिक के सामने या कॉन्फ्रेंस में, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैं मेरा प्रेजेंटेशन दूंगा, तो मुझे ये कम्युनिकेशन स्किल, ये मुझे एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ये क्वालिटी मेरी काम आएंगी, है ना। रिपोर्टिंग के लिए काम आएंगी, कहीं पे मैं मेरा काम प्रेजेंट कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे काम आएंगी। और फिर इसके लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एक प्लान बनाया 2022 में और 2030 में मैं अचीव करूँगा, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे अचीव करना है, 1.5 महीने में करना है, 1 महीने में करना है, 15 दिन में करना है। ऐसा एक टारगेट बना के चलो, डेडलाइन उसकी बना के चलो। दीज आर कॉल्ड एज पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल आई टेल यू। आप सबसे मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी हर चीज़ के बारे में एक कोर्स ही ले लो, कि एक जैसे मतलब सपोज दिस कोर्स इज़ गोइंग ऑन, जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये कोर्स भी एक प्लान है, एक प्री प्लान्ड है, कि मतलब इसको 14 तारीख को कंक्लूड करना है, 14 फरवरी को, और कौन से दिन क्या क्या होने वाला है, कौन सा लेक्चर कब रिलीज़ होने वाला है, कौन सा चैप्टर का मटेरियल टेस्ट कब आपको हम देने वाले हैं, ये सब पहले से प्री प्लान्ड होता है। सो दैट इज़ ए डेवलपमेंट प्लान। ओके, और हर चीज़ एक डेडलाइन के साथ होती है। तो आपको भी आप एक पर्टिकुलर कोर्स भी ही ले लो, मतलब एक बीए का एक कोर्स आप पढ़ रहे हैं, बीएससी का एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में मतलब एक्सपेक्टेड गोल रखो। व्हाट एक्शन आई विल मेक, क्या मैं क्या क्या एक्शन लूँगा, कैसी पढ़ाई करूँगा। सक्सेस क्राइटेरिया, क्या उसका क्राइटेरिया कैसे रहेगा, कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ भी सवाल करे, आई विल एबल टू गिव इट्स आंसर, कि मैं वो सवाल का जवाब दे सकूँगा, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर सपोज़ मुझे वो सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा है, तो मैं आई एम स्टिल इनकम्प्लीट, आई हैव टू वर्क मोर ऑन इट। ओके, एप्लीकेशन क्या है उसका एप्लीकेशन क्या है, यू विल गेट मार्क्स इन अपकमिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, है ना। वो सब्जेक्ट के बारे में अगर आप एक्सपर्ट बन गए, हर सवाल का जवाब देने के काबिल हो गए, तो यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम लेंगे तो ऑफकोर्स यू विल, आई थिंक यू विल बी अ टॉपर इन दैट सब्जेक्ट। ओके, उसकी डेडलाइन रखो कि मुझे कब तक अचीव करना है। ओके, दीज आर कॉल्ड एज पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। एंड ए फाइनल स्लाइड, आई थिंक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव, एक गुड प्लान। तो गुड, एक अच्छे प्लान के कैरेक्टरिस्टिक को एक निमोनिक के ज़रिए उसको याद रखा जाता है, और वो निमोनिक है स्मार्ट। स्मार्ट में व्हाट एस स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो प्लान है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए।
M स्टैंड्स फॉर मेज़रेबल, वो मेज़रेबल होना चाहिए, कितना अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हुआ तो कितना हुआ है, कितना बाकी है, ओके, मेज़रेबल होना चाहिए। ए अचीवेबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल टारगेट सेट नहीं करना है कि मुझे चांद पे जाना है, अभी BA BSc कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे चांद पे जाना है, दैट इज़ ए फ्यूचर प्लान। बट अभी जो हम करंट में जो प्लान बना रहे हैं तो वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, है ना, तो अचीवेबल होना चाहिए वो। उसके बाद आर रिलीवेंट होना चाहिए कि मतलब जिस फील्ड में हम काम कर रहे तो उससे वो रिलीवेंट होना चाहिए, ओके, उससे लग के होना चाहिए। और फाइनली टी स्टैंड फॉर टाइम फ्रेम, है ना, वो टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए, उसके टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, ओके। सो दिस इज़ द निमोनिक, स्मार्ट इज़ द निमोनिक फॉर गुड ऑब्जेक्टिव, ओके। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब, गुड ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स, specific, measurable, achievable, relevant, time framed, and overall its mnemonic is SMART. Okay, thank you very much all the listeners and viewers, and best of luck for your future. For more queries about this performance management, you can contact us personally in the college, and you can go through our submitted modules, materials, and you can practice more from reference books, okay. Thank you all of you.